Elijah is a very important character in the Bible. और एलाइजा जो है उनका जो चरित्र के बारे में है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। He is mentioned in the New Testament by Jesus also, and also by the apostles in the book of James. और वो प्रभु यीशु एलाइजा का नाम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी लिया गया है और एपिस्टल जो दिया गया है नया करार में उनके द्वारा भी बताया गया है। And today we have an opportunity also, many of us have read on Elijah. So you all also can share what you learned from his life, his boldness, how he was filled with the Spirit, how he walked with God. तो आज हम लोग के पास भी मौका है कि हमने जो उनके बारे में पढ़ा है तो हम भी उनके बारे में जो जीवन में आपसे परमेश्वर ने बातें किया है वो भी शेयर कर सकते हैं। It's a very interesting life, and we have got a lot of it to share. So we may take next Saturday also by sharing on the life of Elijah. और बहुत ही अच्छी बातें हैं जब हम उनके बारे में जानेंगे और अगली सभा में भी हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। And we'll see all these heroes of faith. और हम देखते हैं सारे जो विश्वास के नायक हैं। We should think about these are the great heroes in the sight of God. और हमें इनके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि ये परमेश्वर के नजर में महान नायक हैं। The heroes in the sight of God are not the great leaders of this world, the rich people or the sports persons. और परमेश्वर की नजर में जो हीरो है वो लोग नहीं है जो इस संसार में जो महान है या अच्छे खिलाड़ी है या बड़े लीडर है नेता है वो लोग परमेश्वर की नजर में बिल्कुल ही नहीं है। But the Lord said in Isaiah 66, I will look at this man who is a humble and a contrite spirit, a repentant spirit. और परमेश्वर ने यशाया के 66 में कहा है कि मैं उसी की ओर ध्यान दूंगा जिसका मन खेदित और टूटा हुआ है। And those who have a desire for God in their life. और जिनके पास परमेश्वर के लिए इच्छा है। And Elijah was one such man. और उसी में एलाइजा एक है जो उन्होंने उनके बारे में है। So we see that who was Elijah was, we don't know, he was a very ordinary man. It says in the 1 Kings chapter 17. और वो बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। हम देखेंगे पहला राजा 17 में 1। Now the Elijah the Tishbite, who was of the settlers of Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, surely there shall be neither dew nor rain these years except by my word. तब तिब्बसी एलिय्याह ने जो गिलाद के परदेशियों में से था आहाब से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, निसंदेश इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी। Now Elijah lived in the land of Israel, the northern kingdom. और एलाइजा तो जो थे वो नॉर्दर्न उत्तरी राज्य में जिए और वो इज़राइल के से थे। So he lived in a land called Gilead, which is east of the Jordan River. और जिस भूमि पर वो रहते थे उनको जॉर्डन नदी कहा गया था। No, east of the Jordan River. I mean, the east side. हाँ, वो पूरब के साइड था। And now that time Ahab was the king of Israel. और उस समय एहाब जो थे राजा थे। And Ahab was a very wicked king. और एहाब जो थे वो बहुत ही दुष्ट राजा था। You see in the book of Kings, 1 Kings chapter 16 verse 30. और हम पहला राजा 16 के वचन 13 में देखेंगे। It says, Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord more than all who were before him. पहला राजा 16 में वचन 30, और सबसे अधिक और ओमरी के पुत्र आहाब ने यहोवा की दृष्टि में उन सबसे अधिक बुराई की जो उनसे पहले हुए थे। Abraham was the king of Israel. He was a Jewish son, child of Israel. He was one of the chosen people, but he became an evil king. और ये जो थे चुने हुए थे परमेश्वर के द्वारा ही, लेकिन ये बहुत ही दुष्ट राजा बन गए। And he married Jezebel, who was a foreign lady who worshipped idols. और उन्होंने जेजबेल नाम की स्त्री से विवाह कर लिया जो बहुत ही दुष्ट थी और अन्य जाति से थी। And to please her, he made lot of idols. The worship of Baal very important in Israel. और
उन्होंने उनको खुश करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मूर्तियां को निर्माण किया। And because of that, God was very angry and with Ahab and all that he did toward to his country. और इस कारण से परमेश्वर जो थे आहाब के ऊपर बहुत ही क्रोधित थे। And at this particular time, God sent a man called Elijah. और इस सिचुएशन इस समय इस स्थिति में परमेश्वर ने एलाइजा को भेजा। And the one thing that is so great about Elijah is he said, I'm a person. He didn't tell he said, I am standing before God. और एलाइजा ने कहा मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ। Always Elijah stood before God. और हमेशा एलाइजा परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। And nobody can stand before God if he is not pure. और कोई भी परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि अगर उसकी हृदय पवित्र ना हो तो। He was a humble man. वो बहुत ही नम्र व्यक्ति थे। Because he was one of the rare characters who was humble and pure, God could speak to him. और वो बहुत ही नम्र और पवित्र थे और परमेश्वर ने उनसे बात किया। And God had to punish Israel because of all their wickedness and idolatry. और परमेश्वर को इज़राइल के दुष्टता और पाप के कारण उनके ऊपर सजा देना था। So he sent Elijah, the man of God, as his representative to a prophet to speak to the king of Israel. और इसलिए परमेश्वर ने एलाइजा भविष्यवक्ता के द्वारा बातें किया कि इज़राइल से बातें करे, उन्हें चेतावनी दे। And he told the king straight to his face that there will be famine in the land. और उन्होंने बताया राजा से कि अभी इस भूमि पर बहुत सारे अकाल आने वाले हैं। And he just gave that simple message and he left. और ये छोटा सा संदेश देके वहां से वो चले गए। And then God took care of him. He went by a stream and God took care of him. The crows bought food for him to eat. और परमेश्वर ने एलाइजा का ख्याल रखा उसके बाद और उनके खाने के बंदोबस्त भी किया। And we know that story as we read. Then after the famine was so bad, even the water in that river went away, got dried up. और अकाल इतना भयंकर था कि वहां पे पानी भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। And then God told Elijah to go to a widow who was a very poor widow and to go and take a food there. और परमेश्वर ने एलाइजा से कहा कि जाओ, एक विधवा स्त्री है उसके वहां पे तुम्हें खाना मिलेगा। And we know this good story. He told that widow to prepare some food for him. और हम इस कहानी को जानते हैं और उन्होंने उनसे कहा कि मेरे लिए थोड़ा खाना बना के तैयार करो। And she said, this is my last meal I'm eating with my son, and after that there's nothing more, and then we will die. और उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास तो ये आखिरी भोजन बचा है, अगर ये नहीं बचेगा तो मैं और मेरा बेटा भी मर जाएगा। But he said, first you prepare something and give to me to eat. लेकिन एलाइसा ने कहा कि सबसे पहले तुम थोड़ा बना के मेरे पास लाओ सबसे पहले। And then he said, that flour which you have, that will never get finished, and that oil also will not get finished till the famine is over. और जो उनके पास तेल था और रखने के लिए जो सामान थे, उन्होंने बोला अब तुम्हारे अकाल में कभी भी घटी नहीं होगी। So in all these difficult situations, God used Elijah to do fantastic miracles in the lives of many people around him. और परमेश्वर ने एलाइसा का बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया और उनके द्वारा वहां पे बहुत सारे कार्य किए। And after that, this boy who was healed by the boy of this widow got sick and died, and Elijah was used by God to raise him from the dead. और जब विधवा स्त्री का जो बेटा था, पुत्र था, वो मर गया था, तो उसके बाद विधवा ने विनती किया मेरे बेटा को ठीक करने के लिए, तो उन्होंने जीवित कर दिया। Even though there was famine in the land, God took care of his children. और इवन इस देखते हैं कि भयंकर अकाल में भी परमेश्वर अपने बच्चे लोग को ख्याल रखते हैं। And he does his miracles not to everybody but to those who fear God. और परमेश्वर अपने अद्भुत शक्ति चमत्कार करते सबके ऊपर नहीं, बल्कि वही जो परमेश्वर के प्रति नम्र और दीन है। If God wanted to prove to all the people that Elijah could do miracles, he could have gone in front of the
Israelite people and done so many miracles. सॉरी ब्रदर। If God wanted Elijah to show that he was a prophet of God, then he would have gone before the whole crowd of Israelites and done miracles. और परमेश्वर चाहते हैं कि इज़राइल के द्वारा खुलेआम चमत्कार करे, तो वो इज़राइल में चले जाते हैं। But God only tells specific instances, and according to that, Elijah had to obey. और परमेश्वर ने खास तौर पर एलिजा से बात करी और परमेश्वर ने एलिजा के द्वारा अद्भुत कार्य किया। Jesus quoted this and said that, God did not send Elijah to everybody, only to this widow he sent to do a miracle. और हम देखते हैं प्रभु यीशु ने भी नए नियम बताया कि जो एलिजा को सिर्फ विधवा के ही पास ही बताया गया, वहीं पे उन्होंने चमत्कार किया। So there are many people who want to see the signs and wonders and miracles, but God doesn't show any miracle to them. और बहुत सारे ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारे साथ चमत्कार हो, अद्भुत कार्य हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के ऊपर कभी भी ऐसा कार्य और चमत्कार नहीं दिखाता। Because most believers also don't fear God, they only want something from God. क्योंकि बहुत सारे विश्वासी हैं परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, बल्कि वो परमेश्वर से बहुत सारा आशीष पाना चाहते हैं। If we seek after God with all our heart and want to fear Him, then God will do a miracle in our life. अगर हम पूरे हृदय से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर पूरी तरह से हमारे जीवन में जरूर एक चमत्कार करेगा। There's a brother who said that God delivers and God does miracles only for those who really require it, who really need Him. और डब्ल्यू टोज ने कहा कि जो परमेश्वर चमत्कार उन्हीं लोग पे करते हैं जो सच में जिनको जरूरत है उनके ऊपर ही करते हैं। There are a lot of people who want a lot of things from God. They want God to do miracles in their life, but they don't have their heart for God. और बहुत सारे व्यक्ति चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी चमत्कार हो, लेकिन उनका जो दिल है वो परमेश्वर के लिए नहीं है। And in the land of Israel also, there are very few people, God-fearing people there. और इज़राइल के भूमि पे भी बहुत सारे ऐसे बहुत थोड़े ही लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। But God could use only a person like Elijah to tell His word and to stand before Ahab the king and tell him straight to his face some hard things. और परमेश्वर ने एलिशा को ही इस्तेमाल कर सका क्योंकि उनके द्वारा ही वो अद्भुत कार्य करने के लिए चुना। Why? Because he was only who feared God and stood before Him. क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के लिए ही खड़ा होता था। And he only did the thing which God told him. और एलिशा ने वो ही किया जो परमेश्वर ने उनको कहा, उन्हीं का पालन किया। He didn't have much money. He didn't have much land or any such thing. He lived before God's face. उनके पास ना तो धन था, ना ज्यादा जमीन जायदाद था। उनका एक ही इच्छा था कि मैं परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लिए ही जीना चाहता हूँ। And how did Elijah look like? और एलिशा कैसा दिखता होगा? He was a man with a lot of hair on his body. और वो ऐसा व्यक्ति था जिसके शरीर में बहुत सारे बाल थे। He was not very attractive. और वो बहुत आकर्षण नहीं लगता था। So this is how it is described in the Bible that Elijah was a very hairy man, and he spoke the word of God straight and to all those who whatever God wanted him to speak. और परमेश्वर ने एलिशा को ही इस्तेमाल किया, उसके बाल बड़े थे और उनको ही इस्तेमाल किया कि वो परमेश्वर का वचन इज़राइल को बोले। So whatever God wanted him to do, he did. और जो भी परमेश्वर चाहते थे एलिशा के द्वारा करना, उन्होंने एलिशा ने किया। And chapter 18 verse 1. और अध्याय 18 में वचन 1 देखेंगे। पहला राजा अध्याय 18। It came about after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, "Go and show forth yourself to Ahab, and I will send rain on the face of the earth." तब ऐसा हुआ कि बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिय्याह के पास पहुंचा, जा अपने आप को आहाब के समक्ष उपस्थित कर और मैं भूमि पर वर्षा भेजूंगा। So when Elijah told there won't be rain, there was famine for 3 years. और एलिशा ने कहा कि 3 साल तक कोई भी वर्षा नहीं होगा, अकाल रहेगा। And there was real famine, and the king also came to know, and everybody was very troubled because there was hardly any water, hardly any food. और राजा और बहुत सारे लोग घबरा गए क्योंकि बहुत पानी पीने के लिए तक भी यहाँ पे बहुत कम हो गया था। And God himself told him, "Now go and show yourself to Ahab." और परमेश्वर ने ही बोला कि जाओ तुम आहाब को सामने दिखाओ।
go yourself to the king after 3 years. और जाओ 3 साल के बाद वहाब को दिखाओ। Now the king is the most powerful person. He could have killed Elijah, but Elijah obeyed the word of the Lord. आहाब जो था, राजा जो था, वो एलिजा को मार सकता था क्योंकि उसके पास वो मारने का अधिकार था। So when Elijah went and met Ahab, और जब एलिजा आहाब से मिलने के लिए गया, Ahab was not happy at all. आहाब जो था बिल्कुल ही खुश नहीं था। 1 Kings chapter 18 verse 17. पहला राजा अध्याय 18 में वचन 18 वचन सॉरी Verse 17. वचन Chapter 18 17। verse 17. 1 Kings 18 17 वाक्य. Yes. And और it came ऐसा about, and it came about when Ahab saw Elijah that Ahab said to him, "Is this you, you troubler of Israel?" और ऐसा हुआ कि जब आहाब ने एलिया को देखा, तब आहाब ने उससे कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? And verse 18, read 18 also. और उसने उनसे कहा, मैंने इजराइल को नहीं सताया, परंतु तू और तेरे पिता के घराने ने सताया है, क्योंकि तुमने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया और बाल देवताओं की उपासना की है। Yes. So the king started saying that you are harassing us so much. For 3 years we have harassed us. And Elijah told him, "See, I have not harassed you. You are the ones, and you are the ones who have worshipped all idols. You are the ones who have troubled God and troubled Israel." तो आहाब जो एलिसा से कहने लगा, तुमने हमें बहुत दुख दिया 3 साल तक, लेकिन एलिसा ने कहा, नहीं, तुमने हमें दिया है, तुमने इजराइल को यहोवा की आज्ञा को नहीं माना और बाल देवता की उपासना की है। So he said that now God is going to send back rain, but we'll first do a sacrifice on Mount Carmel. परमेश्वर जो है वर्षा भेजने वाले, लेकिन उससे पहले हम पहाड़ पे जाके एक बलि करेंगे। And verse 22, Elijah said, then Elijah said to the people, I alone am left a prophet of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही बचा हूँ और बाल के नबी 450 पुरुष है। Now, because he was only one, most of the people wanted to follow the majority, the king and the prophets of Baal. और बहुत सारे जो लोग थे वो बाल के पीछे करने के लिए थे। Most of the people knew that Elijah was the true prophet. और बहुत सारे लोग जानते थे कि एलिया जो है वो सच्चा भविष्यवक्ता है। The people wanted to think whether he should please the king or please Elijah. और लोगों को यह सोचना था कि मैं एलिया को खुश करूं या राजा को खुश करूं। Verse 21, and Elijah came near to the people and said, how long will you hesitate between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal, follow him. But the people did not answer him a word. और एलिया ने सब लोगों के समीप आकर कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। परंतु लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। So Elijah challenged the people of Israel. If God is real, then you follow him. Otherwise, you follow Baal and do all the idol worship. Go ahead and do it. तो एलिजा ने उनके सामने एक चुनौती भरा रख दिया कि तुमको जो गॉड है, अगर परमेश्वर है तो उनको पीछा करो। But most of these people, the children of Israel, who were God's children, they were divided. Their minds were divided. तो जो भी परमेश्वर के जो वहाँ पे बच्चे थे, उनका जो मन जो था, दो मन वाला था। Because they were fearing the king. क्योंकि वो राजा से डर रहे थे। And because of that, they just kept quiet. और इस कारण से क्या हुआ, वो लोग बहुत ही शांत रह गए। There are many believers like that, even in today's churches, that even in our midst also, they just keep quiet. They don't say yes, they don't say no. That let us also enjoy God and enjoy the world also. और आज हमारे बीच में भी है, संसार में बहुत सारे विश्वासी और हमारे बीच में भी है कि वो संसार को भी आनंद देना चाहते हैं और चर्च का भी मजा लेना चाहते हैं। Then Elijah said in verse 24, और एलिया ने वचन 24 में कहा, he told the prophets of Baal
then you call upon the name of your God, and I will call upon the name of the Lord, and the God who answers by fire, he is God. और जो बाल के भविष्यवक्ता थे उनसे कहा, तब तुम अपने देवता को पुकारना और मैं यहोवा को पुकारूंगा, और जो आग के द्वारा उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोगों ने उत्तर दिया, यह अच्छा विचार है। That is the song that we sang, God of Elijah, hear our prayer, send the fire, send the fire. तो ये हम गाना अभी हमने जो गाया उसके ऊपर ही है। आग को भेज हम लोग गाते हैं वो गाना। हाँ, वो भी हम जो गाना गाते हैं। Literally, what is the meaning of the fire coming upon our life? और इसका मतलब क्या है, जो आग है जो हमारे ऊपर आता है, Is the fire of the Holy Spirit coming upon our life? और ये पवित्र आत्मा के जो आग है वो हमारे ऊपर आता है। Many believers' life, the fire has gone away. और बहुत सारे विश्वासियों के जीवन से जो आग है वो चला गया है। Because they are loving the world and the things of this world, all these worldly idols are there in their life. क्योंकि उन्होंने संसार से भी प्रेम कर रहे हैं और बहुत सारे संसार की चीजों को अपने हृदय में मूर्तियां बना लिए हैं। Because of that, all sorts of sins are there in their life, like immorality and anger and hatred and pride and all these things. और इसका परिणाम ये हो रहा है कि बहुत सारे नफरत, गुस्सा और बहुत सारे बेविचार की बातें भरे पड़े हैं। They are only having the name of God by name. और सिर्फ वो नाम के लिए ही ऐसे बने हुए हैं। But God says, if you want to follow the Lord, you follow Him. Otherwise, go and follow all your idols and God go be a worldly Christian. तो इसलिए परमेश्वर यहाँ हमसे बात कर रहे हैं कि या तो तुम मेरा पीछा करो या तो तुम ये दुनिया का पीछा करो। And what is the significance of the fire in our life? और आग होने का मतलब क्या है हमारे जीवन में? Fire means that we have wonderful amount of love and joy and peace and the power of the Holy Spirit. और आग होने का मतलब है अद्भुत प्रेम, दया, भलाई, कृपा। There's a lot of enthusiasm for God in our life. और हमारे जीवन में फिर बहुत अच्छा जोश रहेगा प्रभु के लिए। Many believers are so sad in their life, their face is always fallen down. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी है जो उनका विश्वास जो है बहुत कम हो गया है, ठंडा हो गया और गुनगुना हो गया है। They want God also, they want the world also. उनको संसार भी चाहिए और गॉड भी चाहिए, परमेश्वर भी चाहिए। That's why God does not give them the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा उनको नहीं देते हैं। There are so many elders also are living like that. और बहुत सारे प्रचारक अगुए जो है वो भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। Then when Elijah gave this challenge, the people said, yes, that is a good thing to listen to. और जब एलिया ने उनके सामने ये चुनौती रखा तो बोला, हाँ ये अच्छा विचार है। Then we know that the children of the Baal's prophets were 400 and 450 and 400 people. There are about more than 800 people. They began to cry and shout whole day from morning to evening. और वो बाल के जो नबी थे 450 लोग थे, वो पूरा दिन चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। But that thing happened. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। Then Elijah said, let people cry out to God. He made a small simple sacrifice and just cut there and poured water on the sacrifice. और एलिया ने फिर परमेश्वर को पुकारा, बहुत साधारण सा रखा और उन्होंने वहां पे कट किया और फिर परमेश्वर को पुकारा। And he made a simple prayer. और बहुत ही साधारण सा प्रार्थना किया। Verse 36. वचन 36-18 में पहला राजा। Says, O Lord, the God of Abraham, Isaac and Israel, today let it be known that thou God in Israel, and I am thy servant, and I have done all these things at thy word. Answer me, O Lord, answer me, that this people may know that thou, O Lord, art God, and thou hast turned their hearts back again. और ऐसा हुआ कि भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी ने समीप जाकर कहा, हे इब्राहिम, इसाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट होने दे कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और कि मैं यह सब तेरे कहने के अनुसार किया है। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही ने उनके मनों को फेर दिया है। He made such a simple, short prayer, less than just half a minute. और उन्होंने बहुत ही साधारण प्रार्थना किया, वो भी आधा मिनट के करीब था। And God heard his prayer. और परमेश्वर ने उनका प्रार्थना सुना। See, when we pray from our heart, we don't have to pray long prayers. और हम देखते, हम जब दिल से प्रार्थना हार्ट से करेंगे तो हमें ज्यादा लंबा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। Many times certain people pray the same prayers over and over again.
और बहुत सारे जो है प्रार्थना है उदम सेम उसी उसी तराल में हर समय करते हैं। God hears the prayer of our heart, which is done in sincerity and truth. और परमेश्वर जो है हमारे हृदय से जो प्रार्थना निकलता है और पूरे गंभीरता और से निकलता है तो प्रभु उनके उत्तर देते हैं। Then we heard that the fire from heaven came upon the sacrifice and burnt up everything, even the water got dried up. और फिर हम देखते हैं कि स्वर्ग से आग आता है और वहां पे उनको जला देता है। Then the people came to know that Elijah is the prophet of the living God, and God is Lord, and Baal is not the God. और तब लोग जान गए कि एलीशा का परमेश्वर परमेश्वर है और ये बाल जो है कोई ईश्वर नहीं है। See, many believers also, they are just waiting to see where is the true God, which church, and where are the true believers. It's only when the fire comes that they can recognize that here is the fire of God on this person's life, and he is the one who is the servant of the Lord. और बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी हैं ढूंढ रहे कि कहाँ पे मुझे ये फायर आग मिलेगा, कहाँ पे मैं यहाँ पे जान पाऊंगा कि सच में यहाँ पे ईश्वर है। लेकिन जब उनके जीवन में आग आता है पवित्र आत्मा का तो पहचान जाते हैं कि हाँ यहाँ पे परमेश्वर है। So God wants you and me to live for Him, so that by our lives we will prove that the fire of God is upon our life. और परमेश्वर चाहता है कि हम उनके लिए जिए तो जिससे कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहें। We should speak the word of boldness, and people will see that we have got joy in our life. और हम पूरी सामर्थ्य और के साथ प्रभु का वचन बोल सकते हैं और प्रभु लोग देखेंगे तुम्हारे जीवन में बहुत आनंद है। We have love for God and love for people of God. और लोगों के प्रति भी प्रेम है और परमेश्वर के लोगों के प्रति भी प्रेम है। When God did this wonderful miracle, then what Elijah said, he told all the people, take all these, verse 40. Then Elijah said to them, seize the prophets of Baal, do not let any of them escape. So that they seized them, and Elijah brought them down to the brook of Kishon and killed them there. तब एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी बचने न पाए। अतः उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किसोन के नाले में ले जाकर वहीं मार डाला। So this is such a thing that he did. He killed nearly 800 people. Elijah himself killed with his own knife all the prophets of the Baal who were influenced by Jezebel. और एलिया जो है खुद ही अकेला ही उन्होंने 8 साल जो बाल की करने वाले थे उन सबको मार डाला। So Elijah was not afraid of the queen or any other people. He just went and killed all these other false prophets. और एलिया ने किसी से भी डरा नहीं, ना राजा से ना किन से, उन्होंने जाके सीधा झूठी भविष्यवक्ता को मार डाला। These false prophets were leading people, the children of Israel, into idolatry, worldliness, and sin. और ये जो झूठे भविष्यवक्ता थे परमेश्वर के लोगों को मूर्ति पूजा में और पाप में ले जा रहे थे। If you are a prophet of God, a man who loves God, we will speak about all these people who run after money, who want fame and name. In the name of Jesus Christ, they run after these things. और यदि आप परमेश्वर की भविष्यवक्ता है तो आप उन बातों को बोलेंगे जैसे कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं, संसार के में महान बनना चाहते हैं, उन सब के बारे में आप बताएंगे कि ये चीज गलत है। We must expose them. और उनके पापों को आप दिखा देंगे। That this is not the way Jesus would live, and the apostles are living. You are living after money, you are running after fame. और उनको बता देंगे कि आप जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं ऐसे प्रभु यीशु नहीं जीते थे, ना पौल जीता था। आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के चीजों के पीछे, महान बनने के पीछे भाग रहे हैं। Elijah could do that because every day he was standing before the Lord. और एलिजा ये कर पाया क्योंकि वो हर दिन परमेश्वर के सामने परमेश्वर के उपस्थिति में रहता था। And the king also began to acknowledge Elijah as the prophet. और राजा ने भी इस बात को मान लिया, स्वीकार किया कि एलिजा जो है परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। Then Elijah told them, now the rain is going to come after 3 years, and told the king, you better hurry back to your palace, otherwise heavy rain will come. You will not be able to reach there safely. और तब उन्होंने बताया कि जल्दी से तुम अपने महल में चले जाओ, बहुत ही तेज रेन बारिश आने वाली है और नहीं तो तुम बच नहीं पाओगे। And it says in verse 46, another miracle that God did. Verse 46, and the hand of the Lord was on Elijah, and he girded up his loins and outran Ahab to Jezreel. और जो परमेश्वर का हाथ था वो एलिजा के ऊपर था।
46. 46 तब यहोवा का हाथ एलाइजा पर ऐसा रहा कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। The king was on the horse, but Elijah was running, and he raced him. और वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। Because God's power was there with him, he could run fast. और परमेश्वर का जो सामर्थ था एलिया के ऊपर था, इसलिए वो बहुत तेजी से दौड़ पाया। And then verse 19, verse 1, it says, Now Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. तब आहाब ने इजराइल को वह सब बताया जो एलिया ने किया था, कि उसने सब नबियों को तलवार से कैसे मार डाला। Then verse 2, then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, So may my gods do to me, and even more, if I did not make your life as the life of one of those by tomorrow about this time. तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत को वह यह कहने के लिए भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उन्हीं के समान न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उनसे भी अधिक करे। Jezebel was the one who started this Baal worship, and all her prophets and priests Elijah had killed. और जेजबल जो था उन्होंने ही ये बाल देवता का शुरू किया था और सबको मारने के लिए ले गया। Jezebel's prophets were killed by Elijah. और इजबेल जो प्रॉफिट थी वो एलिशा के द्वारा मारी गई। The prophets of Baal were killed by Elijah, and the Jezebel had control over these prophets. और जेजबेल जो थी, वो लोग जो बाल की जो भविष्यवक्ता थे, वो सब एलिया के द्वारा मारे गए। And she got so angry with Elijah because Elijah had killed the prophet. He said, "Tomorrow I will see that you also kill." और इस कारण से वो बहुत ही गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा कि कल मैं भी तुम्हें मार डालूंगा। Whenever we take a stand for the Lord, all the evil forces of darkness will come against us. और जब भी हम परमेश्वर के लिए खड़ा होते हैं तो बहुत सारे अंधकार की जो बल है वो हमारे ऊपर दबाव डालता है। But we should not be afraid because God is with us. और हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। But suddenly what happened? Elijah suddenly got very frightened and got very discouraged. और उस समय तुरंत ही एलिजा क्या हो गया, बहुत घबरा गया, डर गया। And he ran away to the forest, and he started there telling the Lord, "Lord, I got so discouraged. I'm so frightened. Now please take my life." और फिर वो भागता हुआ गया और जंगल में खाली जगह पे और बोला, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन को ले लो। That I have done such a great work for you, but now I got so discouraged and so fearful. Now let me die. और मैंने आपके लिए बहुत अद्भुत अद्भुत कार्य हुए हैं, लेकिन अब मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे मरने ही दो। Like other people of Israel, even I am full of fear. और जो इजराइल के लोग हैं उनको घबराहट में रहने दो। नहीं, just like the other people of Israel who are fearful, even I am full of fear. और जैसे कि इजराइल के लोग हैं डरे हुए हैं, वैसे मैं भी डरा हुआ हूँ। But the Lord encouraged him. लेकिन परमेश्वर ने उनको प्रोत्साहन दिया। The angel woke him up and strengthened him and said, "Now eat some food and go. I've got another job for you." तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, चलो उठो और कुछ खा लो और जाओ तुम। Many times when we are discouraged, the Lord speaks to us very kindly and gently. और जब भी सॉरी ब्रदर, Whenever we are discouraged, the Lord speaks to us and encourages us very kindly and gently. और जब कभी भी हम निराश रहते हैं, टूटे हुए रहते हैं, परमेश्वर हमें बहुत नम्रता और करुणा से हमें बात करता है। When we lose our faith, we lose our courage, God doesn't reject us. He said, "Come on, I've got better work. I will encourage you all the more. I got some job for you to do." और जब कभी भी हम विश्वास में कमजोर हो जाते या हम हियाब में आगे नहीं बढ़ते, फिर भी परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देता है और बोलते हैं, तुम्हारे लिए और भी कुछ मैं रखा हूँ। When God took him to the mountain of God, that is where the 10 commandments are given to Moses, Mount Horeb. और परमेश्वर ने फिर वहां उस पहाड़ पे ले गया जहाँ पे मूसा ने 10 आज्ञा दिया था, होरेब पहाड़। And God first came, there was a big wind first, and then there was an earthquake, and after that there was a soft blowing wind.
और फिर बहुत सारा भूकंप भी आया, हवा भी आया, और फिर हवा बहते रहा। And then the Lord spoke to him very gently and quietly. फिर परमेश्वर ने बहुत ही नम्रता से और शांति पूर्वक बात किया। On the same mountain, when God gave the 10 Commandments, God's voice was so loud and all the people trembled that they said, no, I don't want to hear the voice of God. और जब वही पहाड़ जो था जहाँ पे मूसा ने किया था, तो वो लोग बहुत घबरा गए थे, डर रहे थे कि मैं अब परमेश्वर का आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ। But this voice was so God was so gentle towards Elijah, because God knows Elijah's heart and desire. और फिर हम देखते हैं परमेश्वर के यहाँ किस प्रकार से शांतिपूर्वक बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है एलाइजा का हृदय के बारे में जानते थे। So when he heard the gentle sound of a breeze, Elijah went and bowed his head, and God said, Elijah, what are you doing here? और Verse तब 13. बहुत ही नम्रता से Verse 13 end. और ऐसा हुआ कि जब एलिया ने इसे सुना, तो अब उसने अपने मुंह चादर से ढांप लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। देखो, उसने आवाज सुनाई दी, हे एलिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? See, the Lord knows everything, but He wants us to speak our heart. और परमेश्वर तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, हमारे हृदय से बात करना चाहते हैं। So we must tell the Lord all that is in our heart. और इसलिए हमें भी जो भी हमारे हृदय में है परमेश्वर We को have to be बता देना honest चाहिए। completely with the Lord, because Lord knows all the intentions and thoughts of our heart. और हमें पूरी तरह से परमेश्वर के सामने ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल के इच्छाओं को और सोच विचार को भी जानते हैं। And God encouraged him so much, and then He gave another task to do, that's to anoint another king of Syria to be a king. और परमेश्वर ने फिर उनके द्वारा बोला कि एक और राजा को बनाने के लिए, उनके द्वारा इनाइट करने के लिए, अभिषेक करने के लिए कहा। So God always, even if we are discouraged, God always encourages us and tells us to do His work and to live for Him. और इसलिए जब भी हम निराश रहते हैं और चिंता में रहते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि आप परमेश्वर के लिए जिए। So when we love God, God always encourages us and shows that He loves us very much. और जब हम पूरी तरह से परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर भी दिखाएंगे अपना प्रेम, हमें भी प्रेम करेंगे। So, but we have to have a heart to live for Jesus, to live for God only in our life, and not to live for ourselves and not to please people. और लेकिन हमारे हृदय में एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के लिए जिएंगे, ना कि संसार के लिए। So that is, God has called us to live for Him. So His name will be glorified. His will be done in each one of our lives. और प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उन्हीं की इच्छा हमारे जीवन में हो जाए। So we can share more about it next meeting also. So we can hear brothers also share whatever God has touched them about any incident of the apostle, about Elijah's life. So you also can share briefly what we learned. There are so many things to learn from his life, how he had faith in God. और बहुत सारी बातें हैं, हम अगले सभा में जरूर बात सीखेंगे। अभी कोई भाई शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें। So please share briefly, either in English or in Hindi. हिंदी में बात करें, कोई भी शुरू कर सकता है। Anybody can start. Any topic, anything can start, any incident. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं भी जब पढ़ रहा था पहला राजा 17, 18, 19, 20, 21, तो प्रभु ने भी मुझसे बात किया कि परमेश्वर नम्र लोगों के बहुत करीब रहते हैं। जैसे कि एलिया जो उनके द्वारा अद्भुत काम किया,
क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते थे। तो मुझे भी प्रभु जो भी जीवन में हमारे जीवन में आता है, रास्ते में मसीह जीवन में चलते चलते, तो प्रभु कहते तुम इन सब बातों को पालन करो तो मैं तुम्हारे द्वारा अद्भुत कार्य करूंगा। जैसे प्रभु ने कहा ना कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो इनसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। तो मैं देखा था जब भी विधवा जब वहां पे उसको एक ही आखिरी खाना था उसको कि वो खाने के लिए ऐसा बोल रही थी कि मेरे पास तो यही खाना है, लेकिन एलिया ने कहा तुम बना के तो लाओ। उस एलिया को पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर यहाँ पे अभी चमत्कार करने वाले। तो तब वो विधवा जो थी उनका पालन किया, और बाद में उससे बोलिया तो आप सच में परमेश्वर के जन है तो आप कुछ करिए यहाँ पे। तो एलिया ने उस समय क्या हुआ, उसका दिल मैंने देखा, वो परमेश्वर के पास गया और बोला परमेश्वर आपने इस घर पे उसके विनती किया और वो लड़का जो है उनको जिंदा कर दिया। तो इससे मालूम पड़ता है मेरे वहाँ पे एक छोटा सा बहुत अद्भुत बात है कि एलिया हम परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था और बहुत बोल्ड भी था। इवन कोई एक राजा था, बोल रहा था तुम बहुत सारे भविष्यवक्ता को मैंने छिपा के रखा है, लेकिन तुम जा रहे हो, तुमको मार डालेंगे, तुम आखिरी भविष्यवक्ता बचे हो। तो क्या हुआ उसके बाद एलिया नहीं डरा, बोला कि परमेश्वर ने मुझे बोला है आज राजा के सामने खड़ा होना है। तो बहुत बोल्ड था और बहुत मजबूत था। वैसे करेज और प्रोत्साहन मुझे मिला कि हमेशा प्रभु के साथ चलना चाहिए, कोई भी हमें कॉम्प्रोमाइज समझौता नहीं करना चाहिए दुनिया से। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन। Anybody else? This is a big passage. I think we must read it more carefully. और भी है एलाजा के लिए लाइफ में भी, तो पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई किसी को भी शेयर कर सकते हैं, एक या दो ब्रदर्स को? Maybe next week we can meditate upon more upon the life of Elijah and learn about it. प्रभु एलिजा के जीवन से नबी थे, वो नया नियम में भी प्रभु उनको इतना सारा आदर दिया कि जब यीशु मसीह था, जीसस वाज देयर, वो यीशु मसीह और मूसा के साथ आए थे और बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ऐसे लोग प्रभु से बहुत ही प्यार करते हैं, प्रभु की महिमा के लिए जीते हैं। हमको ये सीख लेना है। वी मस्ट आल्सो लर्न, लॉर्ड लेट माय डिजायर बी फॉर यू लॉर्ड मोर एंड मोर, नॉट नॉट लेट मी नॉट प्लीज पीपल में लोगों को खुशी नहीं करना। प्रभु एक दिन मैं आपके साथ सामने खड़ा होना है। प्रभु मेरा सब कुछ भी जो जरूरत है आप तो पूरा करेंगे, मेरा खाना पीना, मुझे और क्या चाहिए जिंदगी में। कई बिलीवर्स भी और पैसे के पीछे जाते हैं और आदर के लिए जाते हैं, हमको इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। प्रभु की महिमा के लिए हमको जीना है। तो और प्रभु हमारे साथ जरूर खड़े हो जाएंगे, हमारे साथ हम हमको सपोर्ट कर लेंगे और हम प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में जरूर पूरा हो जाएंगे। God's will will be done in each one of our lives. So let us not get discouraged. Even though हम लोग पीछे कभी डर गया है, लोगों का डर से पीछे हट गया, we must always stand. Just like God encouraged, प्रभु ने एलिजा को प्रोत्साहन दिया, चलो चलो उठो, आप निराश होके आप सो रहे हैं, अब उठो, चलो खाना पहले खाओ और आप इधर चले जाना, मैं बात करूंगा। जरूर प्रभु ने उनको बहुत ही प्रोत्साहन किया था। तो यही हमको ये सीख मिलता है कि प्रभु हम गिरते हैं, प्रभु हमको उठाते हैं। प्रभु चलो चलो अभी, अब निराश नहीं होना, लोगों का डर लेना नहीं। और एलिजा ने सीधा जाके उनका काम किया है, यह जेहू को अनॉइंट किया है कि आप नेक्स्ट किंग बनने वाला है। प्रभु का इच्छा उन्होंने पूरा कर दिया। और अंत में क्या हम लोग सुना है कि प्रभु ने एलिजा को एक he was taken alive to heaven, जिंदा प्रभु ने उनको आग की
चैरियट क्या बोलते हैं, दैट इज अ हॉर्स कैरेज, घोड़े की कैरेज में उनको कर स्वर्ग में लेके गया. He was the second person to go alive to heaven after Enoch. That means he lived for God. That we can learn so much. And he said he is what John the Baptist said, he is Elijah to come. And Elijah is so important because his until din mein, he said the Elijah will come in the power of Elijah. The church will be the Elijah in the last world. We must stand for the Lord. Malachi में that last verse also we must always see. Malachi का book है. Somebody, everybody can turn. Malachi का पुस्तक है. Last chapter, last book in the Old Testament. इसे मैं बात करूँगा. Malachi chapter 4 verse 5 and 6 ऐसा लिखा है कि Behold, I am going to send you Elijah the prophet. Malachi 4, 5 और 6. Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord. And he'll restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and smite the land with a curse. तो अंतिम दिन प्रभु आने के पहले भी एलाइजा आने वाला है. वो एलाइजा कौन सा है? हम और तुम है. वो कलीसिया है. हम तो कलीसिया प्रभु के लिए जीना है, प्रभु की महिमा के लिए जीना है, प्रभु का सुसमाचार बताना है, को डरना नहीं है. और उसके बाद प्रभु की यीशु मसीह आ जाएंगे और पूरा इस दुनिया को नष्ट कर देंगे. पूरा दुनिया इस्राएल जैसा पूरा भटक गए थे. इवन द बिलीवर्स ऑफ गॉड भटक गए थे. सब मूर्ति पूजा में थे, सब संसारिक चीज में फंसे हुए थे. बस पूरा दिन खाना पीना, घूमना फिरना, नाचना गाना, ये इसमें सब मगन रहते थे. बट प्रभु कहते हैं देखो हम लोग कलीसिया है, यीशु का कलीसिया है, तो हमको प्रभु के लिए आदर होना चाहिए, प्रभु की गर्व होना चाहिए, प्रभु की प्रेम के बारे में बताना चाहिए. हमारा सब रिश्तेदार को हो, बाकी बिलीवर्स को भी, ताकि लोगों को प्रभु के पीछे जाना चाहिए, प्रभु के सच्चे शिष्य बनना चाहिए. नॉट जस्ट टू बी लुक ऑन बिलीवर्स, हाँ मैं चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन आग, प्रभु की आग हमारे ऊपर होना चाहिए. पवित्र आत्मा की आग हमारे आप पर आएंगे जब हम प्रभु के हम सब सौंपते हैं, प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ. तो द लॉर्ड वांट्स अस टू बी इन द लास्ट डेज. जब यीशु मसीह आएंगे तो उन्हीं लोगों को प्रभु स्वर्ग में लेके जाएंगे. they will only be ready for the second coming of the Lord. So हमारा दिल हमको हमेशा तैयार रखना है. हम साधारण लोग होगा, लेकिन प्रभु हमको साथ लेके जाएंगे और हम हमारे जीवन में भी उनका कार्य पूरा हो जाएंगे.